Hello friends, welcome to the part 4 of Reserves and Provision in Accountancy. So, in the previous parts, we learned all about the reserves, types of reserve and about the reserve fund. So, let us start today's video. But before that, I would like to tell you that I would be explaining all of these points in English as well as in Hindi. So, let us start. So, the first topic for today is secret reserve. So, now what is secret reserve? Secret reserve, also known as hidden reserve, is a reserve that is not disclosed in balance sheet. It is created by deliberately understating the assets or overstating the liabilities so that the company's true financial position is stronger than what appears in the accounts. So, जैसा नाम बताता है, सीक्रेट रिजर्व या हिडन रिजर्व एक ऐसा रिजर्व है जो बैलेंस शीट में हम लोग नहीं देख पाते, यानी कि उसे बैलेंस शीट में स्टेट नहीं किया होता। और वो कैसे बनता है? या तो एसेट्स की वैल्यू जितनी है उससे कम दिखा के और लाइबिलिटीज की वैल्यू जितनी है उससे ज्यादा दिखा के इन रिजर्व्स को बनाया जाता है। इससे कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन अकाउंट्स के थ्रू दिखती है उससे थोड़ी स्ट्रॉन्गर बनती है। नाउ वी विल लुक एट द इम्पोर्टेंस और द की पॉइंट्स ऑफ सीक्रेट रिजर्व। सो फर्स्ट इट इज हिडन इन नेचर। सो अनलाइक जनरल और स्पेसिफिक रिजर्व, it is not shown openly in balance sheet under reserves and surplus. It is concealed within the accounts, okay, within the individual accounts. Second point is that it is created by understating or overstating, understating the assets like showing stock at lower value or excessive depreciation, or overstating the liabilities, that is creating excessive provisions, okay. Third point is that it strengthens the financial position. It provides hidden cushion against future losses, downturns or contingencies, ensures that the company has disclosed funds to rely on. So अभी हम इन तीनों पॉइंट्स को हिंदी में देखेंगे। तो कुछ की पॉइंट्स क्या है सीक्रेट रिजर्व के? तो पहला कि ये हिडन नेचर का है, यानी कि हम लोग उसे बैलेंस शीट में नहीं देख पाते, वो अकाउंट्स के अंदर मिलता है। दूसरा, ये कैसे बनता है? या तो है ना एसेट्स की वैल्यू ज्यादा स्टेट कर कम स्टेट करके या अंडर स्टेट करके, जैसे कि है ना स्टॉक की जितनी वैल्यू है उससे थोड़ा लो बताना, या फिर बहुत ही ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज करना एक्सेट्रा, या फिर लाइबिलिटीज को ज्यादा बताना, जैसे कि एक्सेसिव प्रोविजन बनाना। थर्ड पॉइंट है कि ये फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन करता है। ऐसे जो हिडन रिजर्व होते हैं वो कभी भी लॉस हो या डाउनटर्न हो तो ऐसा इंश्योर करता है कि कंपनी के पास फंड्स है जो अभी तक बाकियों को पता नहीं है, जो कि रिपोर्ट से पता चलता है। Now we will move on to the next points, which are it is not shown in balance sheet as it is hidden, and then it is legal in certain cases like permissible for banks, insurance companies and financial institutions for certain regulation. For other companies it may be considered misleading if used improperly, okay. तो और दो पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? तो चौथा पॉइंट ये कहता है कि बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता ऑब्वियसली क्योंकि ये हिडन है, और है ना कि ये कुछ केसेस में लीगली ऐसे मैंडेटरी होता है, जैसे कि बैंक्स है, इंश्योरेंस कंपनी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो उनको थोड़ा मैंडेटरी होता है। बाकी कंपनी के लिए ये मिसलीडिंग हो सकता है अगर ये इम्प्रॉपरली यूज किया गया। नेक्स्ट हम लोग और थोड़े पॉइंट देखेंगे जो कि है लेट्स सी reduce the apparent profits by creating such secret reserve. The profits are reported lower than the actual profits. This can help reducing the dividend payout or tax liabilities. Next point is can be used in bad years. In years of low profit or loss, the secret reserve can be released to stabilize earnings and maintain dividend payments, and it protects against competition. Since the true financial strength is hidden, the competitors cannot easily access the company's real profitability or network, okay. तो और बाकी के तीन की पॉइंट्स क्या बचते हैं? तो पहला कि है ना जितना भी प्रॉफिट आपकी कंपनी ने अर्न किया है उससे थोड़ा लोअर ही दिखाया जाता है, जिसकी वजह से आपको दो चीजों में मदद मिलती है। एक तो टैक्स लाइबिलिटीज है वो कम कर सकते हैं, डिविडेंड पे आउट्स है वो कम कर सकते हैं। दूसरा, जब भी आपकी कंपनी का कोई लॉस हो तो इन सीक्रेट रिजर्व्स को यूज किया जाता है आपके अर्निंग्स को स्टेबलाइज करने के लिए, और कंपटीशन से आपको प्रोटेक्ट करता है क्योंकि सामने वाले को पता ही नहीं कि आपकी कंपनी का ट्रू पोटेंशियल क्या होगा। नाउ वी विल लुक एट एन एग्जांपल ऑफ सीक्रेट रिजर्व। सो फॉर एग्जांपल, अ कंपनी depreciates machinery at 20% instead of 10%.
This reduces profit and assets value artificially. The difference accumulates as secret reserve which can be later adjusted to show higher profits when needed. तो this is how the secret reserve works. तो अब ये सीक्रेट रिजर्व कैसे काम करता है? समझिए कि आपकी कंपनी ने मशीनरी पे डेप्रिसिएशन चार्ज करता है, वो 20% करते हैं 10% की जगह, तो जो बचा हुआ 10% जो एक्स्ट्रा हम लोग चार्ज करते हैं उससे उसकी वजह से हमारी जो प्रॉफिट है वो कम हो जाता है और एसेट की वैल्यू आर्टिफिशियली रिड्यूस हो जाती है। और ये 10% आप एज ए सीक्रेट रिजर्व करके यूज कर सकते हो, बाकी बाद में कभी भी आपको हायर प्रॉफिट्स बताने हो तो आप इसे शो कर सकते हो। तो अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अभी हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जो कि है कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। नाउ व्हाट डज द कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी एक्चुअली मीन? It is a possible obligation that may arise from past events but will only become an actual liability if certain uncertain future event occurs, like pending lawsuits, guarantees, etc. It is not recorded in balance sheet but is disclosed in notes to accounts if the chance of occurrence is significant. तो अब ये contingent liability क्या होती है? Contingent liability एक ऐसी liability होती है जो अभी तक एक्चुअल लायबिलिटी नहीं है, लेकिन अगर कभी फ्यूचर में ऐसा इवेंट अकर हुआ तो वो हमारे लिए लायबिलिटी बन सकती है। ये जो है वो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं होता, लेकिन नोट्स टू अकाउंट यानी कि जो कैलकुलेशंस होते हैं बैलेंस शीट या पीएनएल के लिए, वहां पे आपको दिखाई देता है अगर वो बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट मीन्स उसका आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हाई हो तो। Now we will look at some key points of contingent liability. So the first point is it depends on future event. It arises out of past activities, but its existence depends on the outcome of an uncertain future event. For example, court case, you will not know if it would rule in your favor or rule against you, right? The second, it is uncertain in nature because it depends on the uncertain future event which you do not know. You cannot predict, that's why its nature is also uncertain. It is not recorded in books because if you are not certain, you cannot record it in the books. If you remember what which kind of that if you remember which concept we are talking about, please comment it in the video below. Okay, so example for that is if a company is sued, it will only become liable if the court rules against it. तो अभी हम इन तीनों पॉइंट्स को है ना हिंदी में देखेंगे। तो सबसे पहला कि ये फ्यूचर इवेंट्स पे डिपेंड करता है। क्या ये कैसे डिपेंड करता है कि अगर है ना आपका कोई केस कोर्ट पे केस चल रहा है तो आपको पता नहीं कि उसका जो फेवर होगा वो आपके साइड में आएगा या फिर है ना आपके अगेंस्ट होगा। तो ऐसे फ्यूचर इवेंट्स पे वो डिपेंड करता है, क्योंकि आपको ये फ्यूचर इवेंट्स पता नहीं तो इसकी जो नेचर है वो भी अनसर्टेन है, और ये अनसर्टेन है इसीलिए आपको लोग ये बुक्स में नहीं दिखाते। अगर आपको याद हो कि हम लोग कौन से कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो उस कॉन्सेप्ट का नाम कमेंट सेक्शन में नीचे बता दीजिएगा। नाउ वी विल मूव ऑन टू फ्यू फर्दर पॉइंट्स। देन नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, if liability is probable and can be estimated, it must be disclosed. If it is remote, disclosure is not required. And it arises from past events. The possibility of liability originates from past transaction or events. For example, giving a guarantee or pending litigation, etc. तो अभी ये और थोड़े की पॉइंट्स देखेंगे तो उसमें क्या है कि डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, अगर ये बहुत ही ज्यादा बड़ा है और इसके आने होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हाई है तो इसे डिस्क्लोज करना जरूरी है। लेकिन अगर ऐसा केस नहीं है तो आपको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। और ये ऐसी जो लायबिलिटीज होती है वो आपके पास्ट इवेंट से या ट्रांजैक्शन से भी ओरिजिनेट होती है। जैसे कि आपने किसी दूसरे कंपनी के लिए गारंटीयर का काम कर रहे हो, कि कोई लिटिगेशन पेंडिंग है एक्सेट्रा, ऐसे इवेंट्स होते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। नाउ वी मूव ऑन टू फ्यू मोर की पॉइंट्स दैट फर्स्ट ऑफ ऑल इट प्रोटेक्ट्स स्टेक होल्डर्स। The disclosure of contingent liability helps investors, creditors, and other stakeholders understand the potential risk faced by the business. And second, the uncertain amount and timing. The exact amount and timing of payment are uncertain until the future event is resolved, right?
तो अभी हम लोग इसके और क्या फायदे हो सकते हैं कि पहला कि स्टेक होल्डर्स यानी कि हमारी जितने भी यूजर्स ऑफ अकाउंट है उनको प्रोटेक्ट करता है। कैसे कि इसके बारे में अगर है ना उन्हें पता होगा तो उन्हें पता है कि आपके बिजनेस में ये रिस्क हो सकता है, तो ऐसा नहीं कि आप उनसे कुछ छुपा रहे हो, आप लोगों ने उसे डिस्क्लोज किया है तो वो अंडरस्टैंडिंग होंगे। नेक्स्ट है कि है ना इसका जो अमाउंट और टाइमिंग है वो अनसर्टेन रहता है, आपको नहीं पता कि आपको ये कब पे करना होगा, कितने अमाउंट में पे करना होगा एक्सेट्रा। नाउ वी विल लुक एट एन एग्जांपल ऑफ दिस contingent liability. So the example of sources of contingent liability are let's say pending lawsuits against the company, then guarantees given on behalf of others, claims against the company which are not acknowledged as debts, and bills discounted but not yet matured. So these are some sources of contingent liability. कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी के कुछ सोर्सेस है, एग्जांपल में आप लिख सकते हो जैसे कि पेंडिंग लॉ सूट है कि कोई केस हुआ है आपकी कंपनी पे और वो अभी भी पेंडिंग है, आपने है ना किसी दूसरों के बिहाफ पे आपने गारंटी का काम किया है, ऐसे क्लेम्स जो कंपनी के अगेंस्ट है लेकिन अभी तक आपने उसे डेट्स करके ऐसे एक्नॉलेज नहीं किया है, कुछ बिल्स डिस्काउंटेड है लेकिन अभी तक वो मेच्योर नहीं हुए हैं, तो ऐसे सोर्सेस से contingent liability arise होती है। Now how does this exactly work? Let's look at an example. For example, a company has a lawsuit filed against it for 5 lakh rupees. If the company loses, it must pay. If it wins, no liability arises. This shows as a contingent liability in notes to accounts and not in balance sheet. तो अभी हम लोग इस एग्जाम्पल को देखते हैं अच्छे से। तो समझिए कि आपकी कंपनी के अगेंस्ट एक केस हुआ है 5 लाख रुपए का। अगर आपकी कंपनी हारती है तो फिर है ना 5 लाख आपको पे करने पड़ेंगे, अगर वो जीतती है तो कोई लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी। तो ये टाइप की जो लाइबिलिटी है इसे कहते हैं हम लोग कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी, जो कि हम लोग नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।